Jai Hind all. I am Juni Verma from Mechanical Engineering Department of Bharati Institute of Technology and Engineering. और आज हम फिर मैकेनिकल यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे और यूनिट फर्स्ट में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे. देन व्हाट इज फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टी. देन प्रेशर. यूनिट फर्स्ट में काफ़ी टॉपिक है तो हम नेक्स्ट पीपीटी में भी कवर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता है. तो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज अंडर इन्फ्लुएंसेस ऑफ फोर्सेस. सेम उसी टाइप से फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है. इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी स्टडी बिहेवियर ऑफ फ्लूइड. We study fluid behavior and fluid motion, fluid when fluid is in the rest and जब fluid motion में होता है fluid rest में होता है, दोनों तरफ से fluid की स्टडी करते हैं. तो जो fluid की कैटेगरी होती है जब fluid जब रेस्ट में हो तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं fluid statics and another branch is fluid kinematics जिसमें हम fluid की मोशन की स्टडी करते हैं without considering the process, and fluid dynamics which deals with motion of fluid under the influence of forces. Then there are three branches: fluid statics, then fluid kinematics, next fluid dynamics. Next is fluid dynamics, branch of science which deals with when fluid is at rest. That is called fluid static. Branch that deals with fluid in motion without considering the forces. It is called fluid kinematics. And branch that deals with motion of the fluid under the influence of forces is called fluid dynamics. Next we will talk about what is fluid. Like कोई भी जैसे fluid is a substance which continuously flow. Like अगर हम इस बॉटल से पानी फ्लो करें तो ये पानी कंटिन्यूसली फ्लो करेगा ना, कंटिन्यूसली फ्लो करेगा. तो फिर वो सब्सटेंस है फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस which deforms continuously under the application of tangential force, It does not matter how the intensity of force. It may be small or it may be large. Like we take a small fluid element 0, 1. Okay. If we apply tangential force, fluid has a property, it deforms continuously. And it goes on. Fluid deforms continuously, it never comes in initial position. In a case of solid,
if we apply force, in case of solid, if we apply force, in case of solid, if we apply force, and after some time, if they remove force, then what happen? Fluid fluid to come back in its position after some time, but in solid come back in its position after some time. But in case of fluid never comes back in its initial position. अगर हम किसी रबर को खींचते हैं और उस फोर्स को हटाते हैं तो वो जो रबर है वो अपने इनिशियल पोजीशन में फिर से आ जाती है, लेकिन जो फ्लूइड है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है। लाइक सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होता है, सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होता है वो होता है डेफिनिट डिफॉर्मेशन। सॉलिड में डिफॉर्मेशन डेफिनिट डिफॉर्मेशन होता है, जबकि फ्लूइड में इनडेफिनिट डिफॉर्मेशन होता है। लाइक इन दिस स्लाइड we have studied like this deformation alpha in solid, and in case of fluid there is a indefinite deformation. Like this is a fluid element 01. If we apply tangential force and this fluid goes on, fluid deforms continuously. Fluid continuously deforms, like 01 dash, 011 dash. So that is the difference fluid and solid. Next is a no slip condition. And what is no slip condition? Like हम सभी ने देखा है कि कोई भी रॉक होती है, कोई भी रिवर में कोई भी रॉक होती है, तो जब यहाँ इस पॉइंट पर जो भी इस सरफेस पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं उनका मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी क्या आती है, जीरो जाती है ना। तो मतलब कोई भी फ्लूइड जब किसी बॉडी से फ्लो कर रहा है तो एट अ कॉन्टैक्ट सरफेस देयर इज अ जीरो वेलोसिटी, लाइक अ फ्लूइड इज फ्लोइंग and at this point where fluid is contact with a solid body, at this point there is zero velocity, that is a no slip condition, right? But in upward direction, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी velocity 0 से u तक बढ़ेगी, लाइक और ये एक हमारी एक बाउंड्री लेयर का हमारा डेवलपमेंट होता है, दैट इज अ बाउंड्री लेयर। इन दिस हम आगे पढ़ेंगे कि इस बाउंड्री लेयर में हमारा जो वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, एंड आफ्टर दिस वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज नो स्लिप कंडीशन? व्हेन फ्लूइड comes in contact with a surface, at this point fluid velocity becomes zero. Next we come at concept of continuum. What is concept of continuum? इस continuum concept में हम क्या मानते हैं, कोई भी solid particle, कोई भी बॉडी है वो हमारी किससे बनी होती है, वो हमारी बनी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी सॉलिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी होती है, बहुत सारे एटम होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या कहता है कि यहाँ पर कोई भी वॉइड नहीं है, देयर इज अ नो वॉइड, नो स्पेस, these are closely packed, these are closely packed। ये क्या है, continuum के क्या है, ये assumptions।
these are assumptions of concept of continuum. Like there is a body with no void. It assumes our body is होमोजीनियस। एक चीज और हम देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम में, इट इज वेरी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में भी एंड थर्मोडायनामिक्स में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम और क्या कहता है, ये कहता है कि लेट मी टेक अ सॉलिड बॉडी एंड इस सॉलिड बॉडी में कहीं पर भी क्या नहीं है, वॉइड नहीं है, ये होमोजीनियस है। और ये क्या कहता है कि हम जैसे कि जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी उन इस पूरी बॉडी में अगर डेंसिटी हम किसी भी पार्टिकल पे फाइंड आउट करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी सब पॉइंट पर सिमिलर होगी। और क्या कहते हैं इसमें एक होता है कुड्सन नंबर। कुड्सन नंबर क्या कहता है कि एटम के बीच का एटम के बीच की मतलब ये जो लैम्डा है दैट इज मीन फ्री पाथ and this is a characteristic length. तो characteristic length in case of circle क्या होगा, diameter होगा। in case of cuboid या cube क्या होगा, a होगा। और lambda क्या होगा कि atoms के बीच जो कोलिजन होंगे तो उन कोलिजन के बीच का डिस्टेंस। तो मतलब ये क्या है, कुड्सन नंबर कहाँ से आया, दैट इज अ मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद एक डायमेंशनलेस नंबर दिया कुड्सन नंबर, क्योंकि लैम्डा भी डिस्टेंस एल भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है और लैम्डा मीन फ्री पाथ है। तो कुड्सन नंबर क्या कहता है कि लैम्डा अपॉन एल का रेशियो 0.01 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कुड्सन नंबर 0.01 से कम होना चाहिए, तब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या होगा, तब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम इज वैलिड, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। ओके, तब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वैलिड होगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। इसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। लैम्डा क्या हो गया, मीन फ्री पाथ, ठीक है। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज अ मीन फ्री पाथ। और लैम्डा तो एटम्स के बीच जो भी कोलिजन होंगे, एटम्स के बीच जो कोलिजन होंगे उनके बीच ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी लैम्डा। तो ये सब एजम्पशंस हैं। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट समरी इसकी कहें कि कॉन्टिन्यूम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूम कि देयर इज नो void, there is no void। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की। क्या क्या फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेंसिटी। What is density? Density is equal to
मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी इसकी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं डेंसिटी। हमने देखी है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली I will cover this later. डेंसिटी तो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं हम डेंसिटी के बाद। इस डेंसिटी के बाद बात करते हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम per unit mass. Specific weight. What is specific weight? Weight per unit volume. Specific gravity. What is specific gravity? Specific gravity is a ratio of any substance to the ratio of standard substance. Means specific gravity क्या होगी हमारी? कोई भी substance की कोई भी substance upon standard substance. हम standard substance क्या लेते हैं? बेसिकली वाटर लेते हैं। अगला बात करते हैं हम विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इन जनरल टर्म्स, विस्कोसिटी की हम जब बात करते हैं तो विस्कोसिटी हमारी विस्कोसिटी इन सिंपल मीनिंग विस्कोसिटी इज अ ग्रेसीनेस। कोई भी लिक्विड कितना ग्रेसी है दैट इज अ विस्कोसिटी इन जनरल टर्म्स। बट बेसिकली क्या होता है? जैसे कि हम देखेंगे ऑयल, जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है वो भी विस्कस होता है, एंड जो पेट्रोल होता है वो भी विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी इन जनरल टर्म्स में हम बोलते हैं कितना कोई भी लिक्विड कितना ग्रेसी है, कितना उसमें ग्रेसीनेस कितनी ज़्यादा है। इसके बाद जैसे कि हमने सॉलिड के केस में पढ़ा है कि फ्रिक्शन हमारा लगता है जब हम चलते हैं, है ना। जैसे हमें किसी टेबल को आगे पुश करना हो, है ना। जैसे ये मेरे पास एक पोडियम पड़ा है, तो ये अगर मैं इसे पुश करूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। किसी भी चेयर को, जैसे चेयर है, इस चेयर को मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे धकेलने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा जो इसके मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। सेम उसी टाइप से इन केस ऑफ फ्लूइड, जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है तो उसकी जो लेयर्स हैं उनमें क्या लगता है? उनमें एक फोर्स लगता है जो उसकी मोशन का क्या करता है? मोशन का अपोज करता है।
विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी क्या करती है, जो फ्लूइड की मोशन की प्रॉपर्टी है उसको क्या करती है, अपोज करती है ना, क्या करती है, अपोज करती है। किस तरह से, कैसे विस्कोसिटी हमारे कैसे वर्क करेगी, जैसे कि हमारा एक प्लेट ये है, एक प्लेट हमारी ये है, इनके बीच में फ्लूइड बह रहा है, हमने माना कि ये u वेलोसिटी से बह रहा है। अब हम लेते हैं, ये कोई भी दो लेयर्स उठाते हैं, एक लेयर हमने ऊपर वाली ली, एक लेयर हमने नीचे वाली ली। अब जो ऊपर वाली लेयर होगी वो नीचे वाली लेयर्स पर फोर्स F लगाएगी, ऊपर वाली लेयर इस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। Let me take two layers. हमने फ्लूइड की, ये हमने दो प्लेट के बीच में देखा कि फ्लूइड मोशन हो रहा है v वेलोसिटी से, और हम क्या ले रहे हैं, दो लेयर ले रहे हैं। एक हम लेयर, ये लोअर लेयर, ये अपर लेयर। अपर लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, लोअर लेयर की वेलोसिटी कम है। अपर लेयर लोअर लेयर जो होगी वो अपर लेयर को अपनी तरफ खींचेगी, और लोअर लेयर जो होगी वो अपर लेयर को अपनी तरफ खींचेगी। तो एक फोर्स F ऐसे लगेगा, एक फोर्स F ऐसे लगेगा। और इन दो अपोजिट फोर्स के कारण हमारा क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दो लेयर, आप इस तरह समझेंगे कि दो लेयर, एक इस लिक्विड में से एक लेयर अपर लेयर हुई, एक लेयर लोअर लेयर हुई, तो दोनों लेयर एक दूसरे पे अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगेंगे। उसी फोर्स की वजह से हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। हमारा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और ये शियर स्ट्रेस जो होगा, टॉर्स पर तो क्या होता है, F बाई A होता है। ये शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमारी जो हम यहाँ देखेंगे तो जैसे दो लेयर्स के बीच में फ्लूइड हमारा बह रहा था, यहाँ की वेलोसिटी 0 थी, एंड व्हेन वी गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी हमारी जो बढ़ी वो वेलोसिटी हमारी जो बढ़ी वो क्या बढ़ी, 0 से 0। मतलब हमने क्या लिया था, एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। लाइक ये हमारी दो लेयर होगी ना, तो ये दो लेयर एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स करेंगे। किस तरह से, जैसे ये हमारा फ्लूइड दो लेयर्स के बीच में फ्लूइड बह रहा था, और अपर लेयर ज़्यादा तेज वेलोसिटी से उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, लोअर लेयर के पार्टिकल्स ज़्यादा तेज वेलोसिटी से मूव कर, कम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, दोनों एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। तो जो टॉ होगा, शियर स्ट्रेस होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, du अपॉन dy। When we remove this proportionality limit, then tau is equal to mu du upon dy। इसको उठाइए, कॉन्स्टेंट आएगा mu। That mu is viscosity। ये क्या है, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी में हमारा
विस्कोसिटी जो होती है हमारी उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, हमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि टॉप पोर्शन हमें शियर स्ट्रेस पूछ लिया जाता है, हमें म्यू गिवन है, डीयू गिवन है एंड डीवाई गिवन है। मीन्स दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में हमारा फ्लूइड भरा है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो ही होगी क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा मोस्ट कंडीशन से कि हमारी यहाँ पर जो भी सरफेस के कॉन्टेक्ट में जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वेलोसिटी होती है, जब हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो से यू तक बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हमारी, माना कि यहाँ वेलोसिटी क्या 3 है, तो du कितना हो गया 3 माइनस 0 और dy डिस्टेंस हमारी इन दोनों के बीच की जो विड्थ होगी, माना कि 5 है, तो विस्कोसिटी हमारी क्या होगी 0.6 होगी, है ना। तो इस टाइप से हमारा यूनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे पॉइस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि फ्लूइड कितने टाइप का होता है। फ्लूइड बहुत सारे टाइप के होते हैं, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो पहले बात करते हैं कि हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या हो गया, टाइम्स टू जो हमने पीछे पढ़ा, टाइम्स टू म्यू du अपॉन dy, जहाँ म्यू क्या है विस्कोसिटी, q क्या है जो हमारी डिस्टेंस 0 से u तक इंक्रीज हो रही है, दैट इज अ वेलोसिटी। dy is a distance between 0 and u, like water, air, mercury that are of Newton's fluid। एग्जाम में गेट में भी 1 लाइन क्वेश्चन बन जाता है इससे, इससे भी बन जाता है और यूनिट से भी बन जाता है कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी। तो और नॉन लाइक अ पेंट पॉलीमर सॉल्यूशन दैट जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। एक ही इसमें और देखनी है, हम आगे देखते हैं इसमें लाइक अ एयर डायग्राम, मतलब इसमें हम shear stress and rate of deformation relationship for different fluid means इसमें हम टॉप और डिफॉर्मेशन के बीच में ये कर्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी 0, जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है। फिर बात करते हैं यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इस तीन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, लेकिन ये तीनों इसमें इनका जो स्लोप है दैट इज डिफरेंट स्लोप है। लाइक एन डायरेक्ट फ्लूइड, यहाँ पे जो n है, व्हाट इज n? n इज a विस्कोसिटी बिहेवियर इंडेक्स। तो सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो n क्या शो कर रहा है, एपरेंट विस्कोसिटी, मतलब एपरेंट विस्कोसिटी को शो कर रहा है। लाइक ये जो कर्व बन रहा है वो डिफॉर्मेशन के साथ किस टाइप से, मतलब ये जो इसका स्लोप जो बन रहा है ये n उसी को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये n जो डिफाइन कर रहा है वो विस्कोसिटी बिहेवियर इंडेक्स को शो कर रहा है। ये मैथमेटिकल मॉडल है, बेसिकली हमें ये समझना है कि जो नॉन फ्लूइड है वो इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड का सीधा ग्राफ, उसका ग्राफ जो होगा न्यूटोनियन फ्लूइड का वो स्ट्रेट होगा,
मतलब जैसे हमने मैथ में पढ़ते हैं, है ना, x प्रोपोर्शनल टू y, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इस टाइप से न्यूट्रिएंट फ्रूट के लिए n=1। नॉन न्यूट्रिएंट फ्रूट मतलब जिनका जो स्लोप है वो इस टाइप से एपरेंट विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, जो दैट इज कॉल्ड एपरेंट विस्कोसिटी। जो एपरेंट विस्कोसिटी का स्लोप है वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर इसके अपोजिट जो बिहेवियर शो कर रहा है वो नॉन न्यूट्रिएंट शो कर रहा है। इसके एग्जांपल क्या है डायरेक्ट फ्रूट के? सैंड, स्टार्च, उसके बाद आइडल बिंघम प्लास्टिक फ्रूट जो होता है, बिंघम प्लास्टिक फ्रूट, हाँ, जैसे कि हम टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं तो उसमें हमें इनिशियल कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, फिर वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है। इसी टाइप से आइडल प्लास्टिक फ्लूट हमारा काम करता है। मतलब ये देख रहे हैं हम इसमें, इसका जो कर्व है वो 0 से स्टार्ट नहीं है, इसमें कुछ इनिशियल स्ट्रेस हमको देना, मतलब इनिशियल स्ट्रेस में थोड़ा अच्छा कर्व यहाँ से स्टार्ट है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल और भी टाइप के फ्लो होते हैं, और बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जैसे जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, और जब डेंसिटी वेरी करती है दैट इज अ कंप्रेसिबल फ्लो। सरफेस टेंशन like there is a solid body like a this is this example, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे? बैलेंस्ड। बट यहाँ पर हमारे फोर्स बैलेंस नहीं है, तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, मतलब इस डायरेक्शन में बैलेंस दिख रहा है हमको, पर डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस नहीं है, तो जो सरफेस दो पार्टिकल्स के बीच का जो थिन लेयर होगा वो क्या करेगा? एक अपवर्ड टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, दैट कॉल्ड सरफेस, दैट फोर्स कॉल्ड सरफेस टेंशन, जो इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ लगेगा? ऊपर की साइड लगेगा। दैट इज कॉल्ड, दैट फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब आगे बात कर लेते हैं हम। जैसे हमारा कोई ड्रॉपलेट है, और ड्रॉपलेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जहाँ से हमने इसको कट किया वहाँ भी प्रेशर फोर्स लग रहा, यहाँ पे फोर्सेस लग रहे होंगे। तो दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक तो इसमें क्या लगेगा? सरफेस टेंशन लगेगा, दूसरा हमारा क्या लगेगा? प्रेशर फोर्स लगेगा। प्रेशर इज इक्वल टू F/A, और सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है? हमने जब इसे कट किया तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक यहाँ पर भी प्रेशर लगेगा, तो वो जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? मतलब एक्स, ये दो प्रेशर का डिफरेंस हो गया ना, एक तो ये PO जो आउटसाइड वाला प्रेशर है और ये इनर प्रेशर है, तो ये क्या बबल
बबल की दो सरफेस, बबल जो है उसकी दो सरफेस हो जाएंगी। जैसे अगर बबल से एयर होता है ना, उसकी दो सरफेस रहेंगे, ड्रॉपलेट का सिर्फ एक ही सरफेस होगा। तो यहाँ पर 40/r और यहाँ पर 2t/, मतलब डेल्टा p इक्वल टू 4t को सिग्मा डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t बाई डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d/2। कहीं पर इस फॉर्म में दिया होता है डेल्टा p इक्वल टू 8t/d। लाइक पी आई माइनस पी नॉट मतलब आउटर प्रेशर और इनर प्रेशर, मतलब प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा। अगर ये बबल को कट करता है तो टी को हम देंगे पर सिग्मा भी कहते हैं। देन व्हाट इज कैपिलरिटी? कोई भी अगर हम ट्यूब को किसी लिक्विड से भरे कंटेनर में रखते हैं तो उसमें जो फ्लूइड ऊपर चढ़ता है नीचे गिरता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। इससे हमने देखा होगा कि पुरानी टाइम पर जो लैम्प होती थी उसमें जो ऑयल जो ऊपर चढ़ता था वो उसका मेन रीजन क्या है, कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी का रीजन क्या है? कोहेजन फोर्सेस और एडहेजन फोर्सेस। व्हाट इज कोहेजन? कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। कोहेजन फोर्सेस एंड एडहेजन फोर्सेस। कोहेजन फोर्सेस में दो सिमिलर पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है और एडहेसिव फोर्सेस दो डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक सॉलिड और फ्लूइड के बीच में लगने वाला फोर्सेस है। तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा, जब एडहेजन फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो फ्लूइड क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। जब एडहेजन फोर्सेस कम होगा तो फ्लूइड नीचे गिरेगा। तो ये हमारी होगी कैपिलरिटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर। अगर कोई भी हमारा बॉडी है और वो बॉडी से यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स है, वो किसी डेप्थ पर है, लिक्विड में किसी डेप्थ पर है, तो उसमें जो प्रेशर फोर्स लेगा वो क्या लेगा, P इक्वल टू F/A, F इक्वल टू mg। और m को हम m क्या होता है, हम कहते हैं m इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम इन। तो प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू ρg। तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ेगी नीचे वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार इसके वो देख लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। में हमने जो डिस्कस किया दैट इज व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट व्हाट इज फ्लूइड, difference between fluid and solid,
what is viscosity? Property of fluid. And pressure. Thank you everyone.